A very good afternoon to all of you. I hope that you all are safe wherever you people are, because nowadays the cases of coronavirus are spreading like anything. Is it so? So I hope that you people are safe. You people are studying at home. Okay. So unnecessarily कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, घर पे रहो, आराम से रहो. ठीक है, ज़्यादा किसी को बुलाने वगैरह का भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अभी सेफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो इसलिए चलो ठीक है. सो जैसा कि तुम लोग को पता है कि वी हैव completed 3 chapters of history, 1 chapter of your civics, 1 chapter of geography. Then in science we have completed 4-5 chapters. In maths we have completed 3-4 chapters. Means like this हम लोग कर चुके हैं. तो आज का ये जो क्लास है, एक्चुअली मैंने ये देखा कि हम लोग बहुत ज़्यादा सिलेबस आगे बढ़ गया है हम लोग का, लेकिन कुछ है जो मिसिंग है. थोड़ा बहुत कुछ प्रिपरेशन, फ्रॉम द प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं? बाय डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स. बाय डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम लोग ये काम को कर सकते हैं. इज इट सो? तो बस वही बात है और कुछ नहीं है. तो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. Okay, from your chapter number 2 history, chapter number 3. Okay, so देखते हैं. ठीक है, और तुम लोग कॉपी पेन लेके एकदम बैठ जाओ. ये क्वेश्चंस मैं जो भी तुम लोग को दूंगा उसका आंसर मुझे चाहिए. ठीक है, विद इन 2-3 डेज. तो तैयार रहना एकदम कॉपी पेन लेके. ठीक है, अब मैं जो है वो डिक्टेट करने वाला हूँ आंसर्स. तो ठीक है, आई थिंक कि कोई दिक्कत तुम लोग को नहीं होगा, है ना? चलो तो फिर शुरू करते हैं. सो पुट द हेडिंग चैप्टर नंबर 2 हेडिंग डाल दो तुम. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 तुम हेडिंग डाल दो एंड उसमें तुम लिख दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2. ठीक है, चलो ठीक है. नाउ राइट द फर्स्ट क्वेश्चन. लिखो दैट व्हाट हैपेंड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड इन द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम. What happened in the battle of Seringapatam? What happened in the battle of Seringapatam? Seringapattam. Seringapatam. Next question, number 2. What do you mean by Dharma Shastra? What do you mean by Dharma Shastra? What do you mean by Dharma Shastra? DHARMASHASTRA. DHARMASHASTRA. What do you mean by Dharma Shastra? Okay. Question number 3. What caused huge loss? What caused the huge loss of revenue in Bengal. Huge loss of revenue in Bengal? Question mark. इसके पहले भी तुम लोग क्वेश्चन मार्क दे रहे होगे, आई थिंक, है ना? फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में. चलो ठीक है. Next question लिखो. Write a short note on. No, write a note on, not short. It should be a bigger one. तो long answer type question है ये. तो write a note on Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. Write a note on Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. ओके, अच्छा ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लिखो. डॉक्ट्रिन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई डैश. जो भी जैसा भी क्वेश्चन बन सकता है मैं दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई डैश. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. द कंपनी कैपिटल सी होगा. द कंपनी टुक ओवर अवध. द कंपनी टुक ओवर अवध in the year of dash. In the year of dash. Okay. Next लिखो. The Bengal Nawabs asserted their power. Asserted, ASSERTED, asserted their powers and autonomy after the death of dash. Okay. Next लिखो. The principal figure FIGURE, the principal PRINCIPAL, principal मतलब important. The principal figure in an Indian district was the dash. Okay. Next लिखो. Battle of Plassey, Battle of Plassey, Battle of Plassey was fought in the year of dash. Okay. Next लिखो. Subsidiary alliance was introduced by dash. Subsidiary SUBSICDIARY, subsidiary alliance, ALLAIANCE, alliance was introduced by dash. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. Aurangzeb died in dash. Aurangzeb died in the year of dash. Aurangzeb died in the year of dash. Next लिखो. The battle of dash. The battle of dash was the first major victory for Britishers. The battle of dash was the first major victory for Britishers. ठीक है. Okay. Next लिखो. Robert Clive was appointed as Governor of Bengal. In the year of dash. Next लिखो. Dash was the puppet. ये हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम का बात कर रहे हैं, जब बहुत सारे नवाब से बात हुए हैं, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है कि डैश वॉज द पपेट, PUPPET, कठपुतली है ना. तुम लोग का पोयम था कठपुतली बोली क्यों है ये धागे मेरे आगे पीछे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे छोड़ दो, है ना. इन धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो,
था ना ये तुम लोग का पोयम कठपुतली, तो जिसको उंगलियों पे नचाया जाए, तो डैश वाज द पपेट in the hands of the Britishers, in the hands of the Britishers, in the hands of the Britishers. ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. What was Farman? What was Farman? FARMAN. फरमान क्या था? What was फरमान? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेम द प्लेस, नेम द प्लेस, नेम द प्लेस द ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकेंड, 1 जो रोमन नंबर वाला होता है ना, सेकेंड वो वाला. तो नेम द प्लेस द ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकेंड received as a dowry, received as a dowry, received as a dowry by marrying the Portuguese, by marrying the Portuguese princess, by marrying the Portuguese princess, comma, which later became an important trading sector, which later became an important trading center. ठीक है, इसका 4 ऑप्शंस दे देता हूं मैं, लिख लो, MCQ बन जाएगा. लिखो आइलैंड ऑफ बॉम्बे, आइलैंड ऑफ बॉम्बे. नेक्स्ट लिखो आइलैंड ऑफ गोवा. थर्ड लिखो आइलैंड ऑफ कच्छ, CUCH, आइलैंड ऑफ कच्छ. एंड नंबर 4th लिखो आइलैंड ऑफ पौंडीचेरी, आइलैंड ऑफ पौंडीचेरी. ठीक है, अंडरस्टूड. तो ये सारा कुछ है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारा चैप्टर 2 से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि पूछा जा सकता है. इसके बाहर जो क्या आएगा, इसके बाहर कुछ और क्वेश्चन आंसर्स है. वी हैव सम क्वेश्चन आंसर विच इज गिवन इन द बुक, है ना. और बस उसके बाद तो तुम लोग का छोटा छोटा नोट्स है ही है, पैरामाउंट सी है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये सब तो तुम लोग नोट्स बनाए हो मेरा वीडियो देख के. अगर नहीं बनाए हो तो बनाओ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है तुम लोग के लिए. तो बस इसके बाद जो है और कुछ आई थिंक कि नहीं आना चाहिए. अगर टीचर लोग बहुत ज़्यादा तुम लोगों पर स्ट्रिक्ट नहीं हो जाए और इधर उधर कहीं से भी क्वेश्चंस अगर बना के नहीं लाएं, तब तुम्हारे बुक के अंदर तो बहुत इन्फॉर्मेशन है और दिस इज़ इनफ. जितना क्वेश्चंस करवा दिया, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस वी हैव डन, ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम लोगों ने कर लिया. तो फिर इसके बाद आई डोंट थिंक कि और कुछ आ सकता है. एंड इसके बाद तुम लोगों के पास तुम्हारा नोट्स भी है, तो इसके बाहर कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये सारा कुछ क्वेश्चंस था जिसको तुम लोगों को क्या करना है, जिसको तुम लोगों को जो है वो लिख लेना है, लिख के मुझे सबमिट करना है ना. बहुत ही जल्दी 3-4 दिनों के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना. एंड केस अगर तुम लोग को इन केस अगर तुम लोग को नहीं कोई क्वेश्चंस का आंसर आता है तो तुम लोग हमसे पूछ सकते हो. जैसे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, एक्चुअली इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा. मे भी तुम लोग को नहीं आएगा, तो इसका आंसर है आइलैंड ऑफ बॉम्बे. ठीक है, आइलैंड ऑफ बॉम्बे. ठीक है, तो इसके पीछे कहानी जो है वो भी तुम लोग लिख लो, लिटरली याद रहेगा. लिखो इसके पीछे का जो भी कहानी है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, कौन इसको दिया था. ठीक है, तो कौन किससे शादी हुआ था चार्ल्स सेकेंड का. लिखो कि इसका लिखो ऑप्शन का आंसर लिखिए दो. नाउ राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर, एक्सप्लेनेशन, राइट इट. लिखो द कैथरीन ऑफ ब्रोगांजा, CATHERINE, Catherine of Braganza
was the Queen of England, was the Queen of England, Scotland and Ireland, was the Queen of England, comma, Scotland and Ireland from 1662 to 1685. By marriage to King Charles II. By marriage, TO2, by marriage to King Charles II. One Roman में 2 होगा. Full stop. Catherine's marriage had an important result. Catherine's marriage had an important result for the later history of India, for the later history of India and of the British Empire also, and of the British Empire, comma, though the Queen personally had little to do with it, comma, soon after acquiring the acquiring the seven islands of Bombay as part of her dowry. Charles II rented them to the East India Company को रेंट कर दिया गया था वो, ठीक है, rented them to East India Company which moved its presidency to Bombay, जो कि कोलकाता से, मद्रास से अपना प्रेसिडेंसी बॉम्बे लेके आ गया, which moved its presidency to Bombay. And eventually Bombay become the main cities of India. Understood? So ये है, बाकी भी अगर तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलता तो बताना, एंड इस सारे का आंसर हमको चाहिए कॉपी में विद इन 2-3 days. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 3. ठीक है, रूलिंग द कंट्री साइड. तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट क्लास विद सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. तब तक इसको लिख लो, लिखते लिखते लर्न भी करते रहो, बेहतर है तुम्हारे लिए. ठीक है, सो बी सेफ. ओके, कीप स्टडी wherever you people are. Okay, ठीक है, बाय.